Hello children, welcome to your maths video class. Children, if you are regularly watching the videos, then you must be knowing that we are doing unit 12 of your maths book, which is measurement of capacity. Children, this unit we have started few days back, few videos back, and so far we have completed many sections of this unit, like understanding what capacity is, what is the standard unit of measuring capacity, addition of capacity, subtraction of capacity. All these we have done in the previous videos. And if you have not watched the videos, then please go through those videos so that you can understand the topic. In today's video, we will be doing word problem, that is statement sums of capacity. Children, we have done statement sum earlier also in addition, subtraction, multiplication, division, then measurement of mass, measurement of length. इन सभी टॉपिक्स में हमने स्टेटमेंट सम्स या वर्ड प्रॉब्लम किया है, तो ये कुछ नया नहीं है आपके लिए टॉपिक, लेकिन जो नई चीज़ है वो ये है कि आपको कैपेसिटी को मेजर करना है और आपको जो स्टेटमेंट लिखने की वो आपकी प्रैक्टिस होगी इसमें, बिकॉज राइटिंग ऑफ स्टेटमेंट इज समथिंग न्यू फॉर योर ग्रेड. आपको इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है. एंड आई हैव टोल्ड यू, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोज़ how to write statement from the question itself. You can find clues in the question from where you can write the statements. आप क्वेश्चन में से ही statements लिख सकते हो, कॉपी कर सकते हो with minor changes. थोड़े थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं और आपका स्टेटमेंट रेडी हो जाता है. But before starting word problem, let's revise what we have studied so far in this unit. Children, capacity. Capacity is the, what is the meaning of capacity? Capacity means how much liquid a container can hold. The amount of liquid a container can hold is the capacity. Now liquid is something that flows, something that do not have any definite shape, something that takes the shape of container, like water, milk, juice, oil. All these things comes in the category of liquid, and we cannot use any random unit, any random object for measuring capacity, such as glass, cup, mug, jug. ऐसा कुछ हम नहीं use कर सकते, because the reason is that if we use any object, any other vessel for measuring liquid, we will get different answers. If different person use different objects, they will get different answers. Their answer will be correct for themselves, but it will not be uniform. It will not be same for everyone. So we require a standard unit of measuring capacity, and that is liter and milliliter. Liter we use to measure a larger amount, a greater amount of liquid, and milliliter we use for measuring smaller amount of liquid. लीटर को हम शॉर्ट फॉर्म में एल लिखते हैं और मिलीलीटर को ml लिखते हैं. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं मार्केट में जो लीटर एंड मिलीलीटर में अवेलेबल हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ मिलीलीटर में अवेलेबल होती हैं. एंड वी पे अकॉर्डिंग टू द अमाउंट, अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट ऑफ दैट लिक्विड. जो हम खरीदते हैं मार्केट में सामान, जो हम परचेज करते हैं, वो उसके जो टोटल जो कैपेसिटी होती है, जो टोटल अमाउंट लेते हैं, क्वांटिटी लेते हैं, अकॉर्डिंगली हम पे करते हैं. तो इसलिए मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है. यहाँ भी कैपेसिटी कैन बी मेजर्ड यूजिंग वेट्स, लेकिन लिक्विड को किसी कंटेनर में रखना होगा. वी कैन नॉट कीप इट लाइक एनी सॉलिड आइटम. किसी पैन बैलेंस में डायरेक्टली लिक्विड नहीं रख सकते हैं. आप दूध को डायरेक्टली पैन बैलेंस में, तराजू में नहीं डाल सकते हैं. ऑयल को डायरेक्टली तराजू में नहीं रख सकते हैं. यू नीड अ कंटेनर, यू नीड अ वेसल, यू नीड एनी पैकेट जिसमें आप उसको रखेंगे, एंड यू कैन मेजर यूजिंग वेट्स. अदर way of measuring capacity is that it is already weighed, ऑलरेडी उसकी क्वांटिटी मेजर्ड होती है और
पैकेट के ऊपर या उस कैन के ऊपर, उस बॉटल के ऊपर वो लिखा रहता है मेजरमेंट, नेट वेट इक्वल्स टू 2 लीटर, 1 लीटर, 500 मिलीलीटर, 170, वट एवर इट इज, वो जो भी उसकी कैपेसिटी होगी, जो भी उसकी क्वांटिटी होगी, दैट इज मेंशन्ड ऑन द पैकेट, ऑन द बॉटल, ऑन द बॉक्स, ऑन द कैन, उस पर ऑलरेडी मेंशन रहता है। जो आप पैकेज्ड आइटम लेते हैं, जैसे आप अपने पानी की बोतल ली तो उस पर लिखा होगा 2 लीटर, 1 लीटर, 500 मिलीलीटर। आपने ऑयल लिया, उस पर भी लिखा रहता है 10 लीटर, 5 लीटर, 1 लीटर, आपने जितना खरीदा होगा ऑलरेडी उस पर मेंशन रहता है। और जो चीज़ें पैकेट्स में नहीं है, लाइक अगर आपने मिल्क लिया है और मिल्क आपने पैकेट में लिया है तो भी उस पर मेंशन है, और अगर आपने मिल्क मैन से लिया है तो ही हैज़ अ कंटेनर, उसके पास एक कंटेनर होता है जिसके ऊपर मेजरमेंट मेंशन होता है। एक वेसल जैसा रहता है उसके पास, जिसमें हैंडल बना होता है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ड्रॉ करके भी आपको बताया था। तो वो मिल्कमैन के पास होता है, उसके ऊपर मेजरमेंट लिखा होता है, उससे वो मेजर करके आपको मिल्क देता है। सेम इज फॉर पेट्रोल पंप पे आप जाएंगे, वहां पर भी एक उनका एक मेजरिंग वेसल होता है, उसके ऊपर मेजरमेंट पहले से ही लिखा रहता है, 10 लीटर्स, 5 लीटर्स, 1 लीटर, जो भी अकॉर्डिंगली उस पर सारा कुछ मेंशन होता है। व्हेन वी परचेज वी चेक इट कि वो सही क्वांटिटी है कि नहीं उसमें, और देन वी पे अकॉर्डिंगली। दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटी। वी हैव डन एडिशन ऑफ कैपेसिटी, we added liter to liter, we added milliliter with milliliter. In subtraction, we subtracted liter from liter and milliliter from milliliter. These till here we have completed in the previous videos. So in today's video we will start with word problem. So let's start the word problem. And as you know, word problems are also called statement sums. इसको statement sums भी बोला जाता है क्योंकि हम इसमें statements लिखते हैं. So all these questions will be from your textbook only, from your maths book only. So let's start with the first question. First question is, a goat gives 7 liter milk. Another goat gives 6 liter milk. How much milk do they give all together? Now, I have always told you this thing in every question. Whenever we do word problem, I have explained this, that reading and understanding of question is very important, because if you do not know reading, then you will not be able to understand the question. अगर आपको पढ़ना ही नहीं आएगा तो क्वेश्चन आप समझ ही नहीं पाओगे, और क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे तो आती हुई चीजें भी आप नहीं कर पाओगे. आई हैव टोल्ड यू दैट आपको ऐड करना आता है, आपको सब्ट्रैक्ट करना भी आपने सीख लिया, आपने मल्टीप्लाई करना सीखा, आपने डिवाइड करना सीखा, लेकिन क्वेश्चन समझ में अगर नहीं आया कि उस क्वेश्चन में क्या करना है, प्लस करना है कि माइनस करना है, क्या करना है, अगर ये नहीं समझ में आया तो आते हुए भी आप नहीं कर पाओगे. तो क्वेश्चन को पहले कॉम्प्रीहेंड कीजिए, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट, कि उसमें करना क्या है. इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मच मिल्क डू दे गिव ऑल टुगेदर. व्हेन दिस वर्ड ऑल टुगेदर कम्स, इसका मतलब है कि ऐड करना है. जब ऑल टुगेदर वर्ड आता है इसका मतलब होता है प्लस करना है. ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हमें प्लस करना है. अ गोट गिव्स 7 लीटर मिल्क, एक गोट है जो 7 लीटर मिल्क देती है. अनदर गोट गिव्स 6 लीटर मिल्क, दूसरी जो गोट है वो 6 लीटर मिल्क देती है. तो दोनों गोट्स मिलाकर कितना मिल्क है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या है दोनों गोट का मिलाकर. सो आई विल राइट द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड फर्स्ट. Another goat gives 6 liter
दूसरी गोट है वो 6 लीटर मिल्क दे रही है. हाउ मच मिल्क डू दे गिव ऑल टुगेदर? हाउ मच मिल्क डू दे गिव ऑल टुगेदर? ऑल टुगेदर मतलब टोटल. आपको दोनों बकरियों का दूध मिलाकर टोटल दूध कितना होता है ये आपको बताना है. ठीक है, तो चलिए पहले हम लिखेंगे स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट हम क्वेश्चन में से ही लिख लेते हैं. अ गोट गिव्स मिल्क इक्वल टू, या आप अ गोट की जगह पे 1 गोट भी लिख सकते हैं. पर जैसा मैंने आपको बोला कि अभी आप छोटी ग्रेड में हैं तो आप क्वेश्चन में से ही कॉपी कर सकते हैं. अ गोट गिव्स मिल्क इक्वल टू 7 लीटर. ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे अनदर गोट गिव्स मिल्क दूसरी वाली जो गोट है वो कितना दे रही है? 6 लीटर. सो टोटल मिल्क. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं. या दे गिव टोटल मिल्क दे गिव ऑल टुगेदर, ऐसा भी लिख सकते हैं. या टोटल मिल्क भी लिख सकते हैं. टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क भी लिख सकते हैं. तो टोटल मिल्क कितना हुआ? 7 लीटर प्लस 6 लीटर. यहाँ पर आप 7 लीटर के साथ 6 लीटर को ऐड करके बताएंगे. 7 प्लस 6. नाउ व्हाट इज द टोटल ऑफ 7 प्लस 6? आप ऐड करके देखिए 7 प्लस 6 कितना होता है? 7 प्लस 6 इज 13. यू विल राइट हियर 13 एंड लीटर. तो दोनों बकरियों का दूध मिलाकर कितना हो जाएगा? 13 लीटर्स. You will write here 13 liter and here you will write answer 13 liter milk. Okay. Now this is the complete answer. Got it? Let's do the second one. First go through this question. एक बार आप देख लीजिए. Then I will erase and write the next question. Next question. A bottle contains 250 milliliter water. Another bottle contains 708 milliliter water. Find the water in 2 bottles. देखिए अब ये क्वेश्चन भी समझना है. अ बॉटल कंटेन्स 250 मिलीलीटर वाटर, मतलब एक बॉटल है जिसमें कि 250 मिलीलीटर वाटर है. ठीक, एक और दूसरी बॉटल है, अनदर बॉटल, उसमें कितना पानी है? दैट कंटेन्स 708 मिलीलीटर वाटर. 2 बॉटल्स हैं, एक बॉटल है जिसमें कि 250 मिलीलीटर है और दूसरी जो बॉटल है उसमें 708 मिलीलीटर है. दोनों में अलग अलग जो वाटर का जो क्वांटिटी है वो अलग अलग है. फाइंड द वाटर इन 2 बॉटल्स. तो दोनों बॉटल का मिलाकर टोटल पानी कितना है, टोटल वाटर कितना है वो आपको बता. टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर यू कैन से व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर. सो नाउ आई विल राइट द क्वेश्चन. Question number 2. Another bottle
No, sorry, 708 ml. Find the water in 2 bottles. क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। हमारे पास 2 बॉटल्स हैं, एक बॉटल में 250 ml वाटर है, दूसरी बॉटल में 708 ml वाटर है। टोटल पानी हमारे पास, टोटल वाटर हमारे पास कितना है ये हमें जानना है। तो चलिए हम पहले स्टेटमेंट लिख लेंगे। अगेन ट्राई टू राइट फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो हम लिखेंगे अ बॉटल कंटेन्स वाटर इक्वल टू a bottle contains water equal to 250 ml milliliter. A bottle contains water equal to 250 ml. Next sentence लिखेंगे another bottle contains water. दूसरी बॉटल में कितना है 708 ml। दोनों बॉटल में अलग अलग क्वांटिटी है, अलग अलग क्वांटिटी है पानी का, वाटर का। अब दोनों का मिला के हमें बताना है। तो टोटल वाटर, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कर सकते हैं। टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन 2 बॉटल्स लिख सकते हैं, या टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर में भी कंप्लीट है। आप चाहे तो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन 2 बॉटल्स भी लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या करना है 750 250 ml plus 708 ml इक्वल टू, यहां पर आप ऐड करके दिखा दीजिए। 250 ml plus 708 ml. Now let's add it. 0 plus 8. 8 में आपको 0 ऐड करना है। तो what you will get? You will get 8 only, because we know that whenever 0 is added to any number, we get the same number as answer. किसी भी नंबर में आप अगर 0 ऐड करेंगे तो आंसर वही नंबर रह जाएगा, क्योंकि 0 का अकेले कोई वैल्यू नहीं होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया 8। Now here 5 के साथ 0 ऐड करना है। अगेन 0 is added to a number, तो आंसर में वही का वही नंबर हमें मिल जाएगा, मतलब हमें 5 ही मिलेगा। Then 7 plus 2. 7 plus 2 is 9. Okay, good. तो अब हो गया हमारा 958. But this is not complete because we have not mentioned the unit. Now it is complete. Here the addition is complete. 958 ml water है total. तो पहले हम यहाँ लिखेंगे 958 ml और यहाँ पर फिर लिखेंगे आंसर 958 ml वाटर। टोटल जो पानी है, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन 2 बॉटल्स इज 958 ml। टोटल पानी 958 है मिलीलीटर्स। ठीक है। नेक्स्ट इज विल डू द थर्ड क्वेश्चन। ओके, we'll do the third question. You go through the question first.
Now the third question. A petrol pump sold 344 liter on Monday and 200 liters of petrol on Tuesday. How much petrol was sold in 2 days? Now did you understand the question? पेट्रोल पंप है, वहां पे पेट्रोल बिक रहा है, तो मंडे को पेट्रोल पंप पे 344 लीटर्स पेट्रोल बिका। ठीक है, अब पेट्रोल पंप सोल्ड मतलब पेट्रोल पंप ने बेचा, सोल्ड मतलब बेचना, तो पेट्रोल पंप ने मंडे को 344 लीटर्स पेट्रोल बेचा और ट्यूसडे को 200 लीटर्स बेचा। ठीक है, एंड 200 लीटर्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे, 2 दिन का बताया हुआ है। मंडे को 344 लीटर्स बिका और ट्यूसडे को 200 लीटर्स बिका। हाउ मच पेट्रोल वॉज सोल्ड इन 2 days? तो दोनों दिन का मिलाकर कितना पेट्रोल बिका? उस पेट्रोल पंप में मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन का मिलाकर टोटल कितना पेट्रोल बिका? यहां भी आपको क्या करना है? यू हैव टू एड, यस यू हैव टू ऐड, क्योंकि हमें 2 दिन का टोटल बताना है कितना पेट्रोल बिका, और टोटल जानने के लिए हमेशा हम करते हैं ऐड। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, क्वेश्चन का स्टेटमेंट फिर समझेंगे। A petrol pump sold 344 liter on Monday and 200 liter of petrol on Tuesday. मंडे को इतना और ट्यूसडे को इतना, 2 दिन का हमें पता है, अब दोनों दिन का मिलाकर हमें बताना है। तो हाउ मच पेट्रोल वॉज सोल्ड in 2 days? दोनों दिन मिलाकर कितना पेट्रोल बिका? ठीक है, हाउ मच पेट्रोल वॉज सोल्ड। तो पहले क्या करना होगा हमें? वी हैव टू राइट स्टेटमेंट्स। पहले हम स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको हम सॉल्व करके बताएंगे कि हमारा आंसर कैसे आया। बिकॉज हम आंसर जब लिखते हैं तो हमें बताना होता है कि हाउ वी गॉट दैट आंसर। तो आपको सॉल्व करके दिखाना होता है, और सिर्फ सॉल्व करके भी आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हियर व्हेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन। सो आफ्टर सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चन यू विल राइट दैट यू गॉट दिस आंसर। ओके, एंड सिर्फ डायरेक्टली आंसर भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमको बताना है कि वो आंसर हमें कैसे मिला। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, इसका स्टेटमेंट हम चेंज कर सकते हैं। पेट्रोल सोल्ड ऑन मंडे। ठीक है, अब पेट्रोल पंप सोल्ड पेट्रोल ऑन मंडे, इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पेट्रोल सोल्ड ऑन मंडे भी लिख सकते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग पेट्रोल पंप सोल्ड पेट्रोल ऑन मंडे, ऐसा लिखने से की जगह आप लिख सकते हैं पेट्रोल सोल्ड ऑन मंडे। पेट्रोल मंडे को कितना बिका? डायरेक्टली आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, पेट्रोल सोल्ड ऑन मंडे 344 liters।
इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये नहीं लिख सकते हैं पेट्रोल पंप सोल्ड पेट्रोल ऑन मंडे, वो भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये शॉर्ट है, शॉर्ट सेंटेंस है, तो इसलिए बताया आपको ये। नेक्स्ट है पेट्रोल सोल्ड ऑन ट्यूसडे। अब ट्यूसडे को कितना बिका? 200 लीटर। क्वेश्चन क्या है? हाउ मच पेट्रोल वॉज सोल्ड इन 2 days? तो टोटल पेट्रोल सोल्ड इन 2 days, 2 दिन में टोटल कितना पेट्रोल आया? तो वो हमको टोटल कैसे पता चलेगा? हम दोनों दिन की जो क्वांटिटी है उसको हम ऐड करेंगे। तो दोनों दिन की क्वांटिटी को ऐड कर लेते हैं। 344 लीटर के साथ 200 को हम जब ऐड करेंगे तो हमें दोनों दिन का टोटल पता चल जाएगा। तो ऐड करने के लिए क्या करना है? यहाँ पर ऐड कर लेंगे हम 344 लीटर, उसके साथ प्लस करेंगे 200 लीटर। नाउ लेट्स ऐड दिस। अब इसको सिंपल जैसे हम ऐड करते हैं वैसे ही हमें इसे ऐड करना है। तो आप खुद भी ऐड कर सकते हैं, साथ में करते हैं 4 + 0। किसी भी नंबर में जब 0 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें आंसर? वही नंबर मिलेगा, तो 4 लिख देंगे। अगेन 4 + 0 है, मतलब 0 ऐड कर रहे हैं, वही नंबर मिलेगा। वी विल राइट 4 ओनली। नाउ 3 + 2, 3 एक 2 को आपको ऐड करना है। तो ये तो बहुत सिंपल ऐड है। 3 + 2 कितना होता है? 3 + 2 is 5। 544। 544 क्या हुआ? लीटर्स। ये बहुत जरूरी है। 544 लीटर्स ऐड करने पे आया। तो हमें यहाँ बताना होगा ना कि जब हमने ऐड किया तो हमें आंसर मिला 544 लीटर। तो दिस इज वी आर शोइंग दैट हाउ वी गॉट दिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हम आंसर लिखेंगे यू विल राइट 544 लीटर पेट्रोल। और ये जो आंसर है वो आपको कैसे मिला वो आपने यहाँ पर शो किया हुआ है। ठीक है, ये आपने शो किया है कि आपको कैसे ये आंसर मिला। तो हमारा आंसर क्या है? हाउ मच पेट्रोल वॉज सोल्ड इन 2 days? आंसर इज 544 liters of petrol was sold in 2 days on Monday and Tuesday, दोनों मिलाकर 554 लीटर्स पेट्रोल बिका। ठीक, एक बार आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम स्टेटमेंट्स क्वेश्चन से ले सकते हैं या थोड़ा सा हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको चेंज करके दिखाया। डायरेक्टली हमने क्वेश्चन में से नहीं लिया है स्टेटमेंट, थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बस वर्ड्स थोड़े से आगे पीछे। पेट्रोल सोल्ड ऑन मंडे कर दिया है इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल सेंटेंस। तो ये तरीका भी सही है और क्वेश्चन में से कॉपी भी अगर करते हैं देन ऑल्सो इट विल बी कंसिडर्ड एज करेक्ट ओनली। ठीक है, तो परेशान होने की बात नहीं है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस अभी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बट द फोर्थ क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं ना, तो बाकी अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के 3 क्वेश्चंस को आप जो है वो जो आप ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं। और कोई डाउट है तो वो आप डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन। यहाँ तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, हिंट ले सकते हैं, बट ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। आप खुद से ही करने की कोशिश कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपको क्या नहीं आ रहा है। ऐसे देखने से तो सब समझ में आ जाता है कि क्या करना है, लेकिन जब आप खुद से ट्राई करेंगे स्टेटमेंट्स लिखने का तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या डिफिकल्टी आ रही है। और किसी भी तरह का डाउट होगा तो यू कैन क्लियर दैट।
तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द अदर क्वेश्चंस ऑफ वर्ड प्रॉब्लम. थैंक यू.